Very good morning, students. So, Prabhat sabhi ko. Today we are going to start the second chapter of your geography book, that is Physical Features of India. Physical Features of India आज हमें चैप्टर पढ़ना है. हमने पहले चैप्टर में इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ा. नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट फिजिकल फीचर्स विच आर कंट्री हैज़ and their characteristics and specific features and composition. So let's start the chapter Physical Features of India. India has almost all different varieties of physical features ranging from the mountains, the desert, the plains, the plateau, islands, etc. The peninsular plateau is one of the ancient land masses on the earth's surface. तो भारत का जो निचला हिस्सा है that is peninsular plateau. It is one of the oldest physical divisions if you talk about the different landforms which are found in the world. The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms and the newest landforms. If you talk about physiographic divisions, then India is divided into 6 major divisions. आइए मैप पर देखते हैं. Let us look at the map. In the north you have the Himalayan mountains जो आपको parallel lines दिख रही हैं. नॉर्थ में वो है हिमालयन माउंटेन्स. उसके बाद है नदर्न प्लेन्स, उसके जस्ट नीचे जहाँ पे रिवर्स दिख रहे हैं आपको, गंडक, घग्गर, कोसी, गंगा, यमुना, इंडस एसेट्रा. टुवर्ड्स द वेस्ट यू हैव द इंडियन डेजर्ट. मूविंग डाउन साउथ you have the peninsular plateau, and alongside the peninsular plateau on the eastern side of Eastern Ghats you have coastal plains, eastern coastal plains, and on the western side of the Western Ghats you have western coastal plains. Along with that you also have the Lakshadweep Islands, that is in the Arabian Sea, and the Andaman and Nicobar Islands, those are in the Bay of Bengal. तो ये हमारी 6 major physical divisions हैं. इनके नाम देख लेते हैं एक बार. The physical features of India has the Himalayan mountains in the north, the northern plains, they are also in the north but south to the Himalayan mountains, the peninsular plateau which is towards the southern part of the country, the Indian desert which is towards the west and northwestern part. You have the coastal plains which are both on the eastern as well the western side of Eastern Ghats and Western Ghats respectively, and you have the two group of islands, that is Lakshadweep Islands and Andaman Nicobar Islands. So moving on, the Himalayan mountains, अगर हिमालयन माउंटेन्स की आप बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स जो है वो वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के, और हमारे जो नदर्न बॉर्डर है उस पे फैले हुए हैं. दे हैव फॉर्म्ड द शेप ऑफ अ आर्क, एक कर्व की शेप उन्होंने बनाई हुई है. The mountain ranges run from west to east direction, that is from Indus to Brahmaputra. तो इंडस रिवर से नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग फैले हुए हैं. दे आर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में है कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक. विड्थ वेरी करती है 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर. They are wider in Jammu and Kashmir, that is around 400 kilometers wide, and in Arunachal Pradesh they are reduced to only 150 kilometers in width. So if you talk about the major divisions of Himalayas को दो तरीके से क्लासीफाई किया है, एक फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दूसरा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो पहले हम नॉर्थ टू साउथ डिवीजन को देख लेते हैं. देखिए आपके लिए सिंबॉलिकली बनाया गया है, इसको आपने ड्रॉ नहीं करना है मैप पे. वी विल डू द मैप पॉइंट सेपरेटली. इट इज़ ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट द हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट इज ग्रेटर हिमालयाज, सेकेंड इज लेसर हिमालयाज, एंड थर्ड इज आउटर हिमालयाज. सो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जो है हिमालयाज की नॉर्थ से साउथ, वो है द ग्रेटर हिमालयाज और द हिमाद्री, द लेसर हिमालयाज और हिमाचल, एंड द आउटर हिमालयाज और शिवालिक. तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक. इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, इट इज ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज. सो इफ यू टॉक अबाउट ग्रेटर हिमालयाज, they have different physical features such as they are most continuous and lofty. तो कॉन्टीन्यूसली माउंटेन रेंजेस बने हुए हैं, बहुत मुश्किल से इनसे पास हुआ जाता है, तो इसके लिए डिफरेंट माउंटेन पासेस इनके बीच में होते हैं. और सबसे लंबे जो तीनों रेंजेस हैं हिमालयाज के, उसमें सबसे ऊंचे हैं.
इफ वी फर्दर मूव ऑन, द एवरेज हाइट इज 6000 मीटर्स, लगभग 6000 मीटर एवरेज हाइट है ग्रेटर हिमालयाज की, हिमाद्री की। और जो कोर है वो बनी हुई है ग्रेनाइट पत्थर से। इट इज़ पेरेनियली स्नो बाउंड, परमानेंटली स्नो कवर्ड रहते हैं ज़्यादातर पीक्स, और कुछ बर्फ़ जो पिघलती है उससे जो रिवर्स हैं उनमें, हमारे जो मेजर रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें पानी आता है। नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड इन द रेंज फ्रॉम एंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। द फोल्ड आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, जो फोल्ड्स हैं वो असिमेट्रिकल है, यानी कि आइडेंटिकल नहीं है। सभी माउंटेन्स उतने ऊंचे नहीं हैं, कुछ ज़्यादा ऊंचे हैं और कुछ थोड़े नीचे हैं। नेक्स्ट इज द लेसर हिमालयाज। The lesser Himalayas are towards the south of the Himadris, so they are the most rugged mountain system. काफ़ी उबड़ खाबड़ ये mountains हैं lesser Himalayas के। They are composed of highly altered and compressed rocks. The average height is between 3700 to 4500 मीटर। जो average height है वो 3700 से 4500 मीटर के बीच में है। The average width is about 50 किलोमीटर, जो औसत चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। This range consists of famous valley of Kashmir, the Kangra, the Kullu, मनालीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कश्मीर की फेमस वैली भी हमें हिमाद्रीज में, हिमाचल में मिलती है। हिमाचल जो रेंज है, स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो कांगड़ा और कुल्लू वैलीज हैं हिमाचल प्रदेश में, वो भी इसी हिमाचल रेंज में पड़ती हैं, या लेसर हिमालयाज में दे आर लोकेटेड। If you talk about outer Himalayas, they are the southernmost part of the Himalayas. ठीक है, they are known as शिवालिक्स या outer Himalayas. Their average height is between 900 to 1100 मीटर। इनकी जो औसत ऊंचाई है वो है 900 मीटर से 1100 मीटर, यानी कि ये सबसे कम लंबे हैं तीनों में से। Its average width is between 10 to 50 किलोमीटर। उनकी चौड़ाई भी लगभग सबसे कम है तीनों ही जो रेंजेस हैं उसमें। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers. ये ज़्यादातर जो है वो अनस्टेबल है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बने हुए हैं, तो अक्सर आपको लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की समस्याएं यहाँ पर दिखती हैं, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ उत्तराखंड। It consists of longitudinal valleys known as dunes, example देहरादून, कोटली दून एक्सेट्रा। बहुत फेमस वैलीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं जिनको दून्स भी कहते हैं। तो इसी के श्रृंखला में कुछ एग्जाम्पल है देहरादून, कोटली दून एसेट्रा। तो ये तो बात हुई नॉर्थ से साउथ डिवीज़न की हिमालयाज़ की। अब हिमालयाज़ को वेस्ट से ईस्ट पे भी बांटा है। देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं फिगर में। इसमें क्या है, इंडस रिवर दिख रही है सबको लेफ्ट पे, और राइट पे दिख रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में 4 भागों में बांटा है। देखते हैं, जो इंडस और सतलुज रिवर के बीच का हिमालय है उसको इन्होंने बोला है पंजाब हिमालयाज। उसको वैसे एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं कश्मीर हिमालयाज। ठीक है, तो सतलुज और इंडस के बीच का जो हिमालय है वो है पंजाब हिमालय। उसके बाद काली और सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय है वो है कुमाऊं हिमालय। फिर काली और तीस्ता रिवर के बीच का जो हिमालय है वो है नेपाल हिमालय। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय है, या दिहांग के बीच का जो हिमालय है, उसको कहते हैं हम असम हिमालय। तो नदियों के लोकेशन के आधार पे या उनकी पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू माउंटेन्स के आधार पे वेस्ट टू ईस्ट में 4 हिस्सों में बांटा गया है। आइए देख लेते हैं इनके नाम। द डिवीजन ऑफ नॉर्थ टू साउथ हिमालयाज इज द पंजाब हिमालयाज और कश्मीर हिमालयाज विच लाई बिटवीन इंडस एंड सतलुज। द कुमाऊं हिमालयाज विच लाई बिटवीन सतलुज एंड काली। उसके बाद है द नेपाल हिमालयाज लाइंग बिटवीन काली एंड तीस्ता। एंड लास्ट द असम हिमालयाज विच लाई बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स। सो इसके अलावा भी जो कुछ माउंटेन्स बच गए हैं, यानी कि जो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक के नीचे के हिमालयाज हैं, या जो हमारी ईस्टर्न बाउंड्री है, जो हमारा नागालैंड है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, यहाँ से जो हिमालयाज जा रहे हैं उसको हम कहते हैं पूर्वांचल। तो पूर्वांचल देख सकते हैं आप, जो हिमालयाज हैं उसमें पटकाई बूम दिख रहा होगा, नागा दिख रहा होगा, मीज़ो हिल्स दिख रहा है, उसके अलावा गारो, खासी, जयंतिया हिल्स दिख रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट
जो है हिल चेन्स हैं, रेंजेस हैं, आप देख सकते हैं पटकाई बुम, नागा, मिज़ो हिल्स, उसके बाद गारो, खासी, जयंतिया। दीज आर द हिल्स, जो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो हमारे हिल्स हैं इनको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिमालयाज। तो द हिमालयाज अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया आर नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालयाज। दे आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सेडिमेंट्री सैंडस्टोन्स। दे आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट विच रन्स पैरेलल टू द रेंजेस एंड वैलीज। तो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हैं यहाँ पे, जिससे हमें वेराइटी ऑफ एनिमल्स स्पीसीज, प्लांट स्पीशीज देखने को मिलते हैं। द मेजर पार्ट्स आर पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिज़ो हिल्स। ठीक है, तो ये सारे हिल्स आपको दिख रहे होंगे। वी विल सेपरेटली ऑल्सो मार्क देम ऑन द मैप जब मैप वर्क करेंगे इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होने के बाद। तो अब हमने हिमालयाज़ की बात कर ली, जिसमें हमने 3 मेजर पार्ट्स के डिविजन्स देख लिए, एक नॉर्थ से साउथ हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। उसके बाद फिर वेस्ट से ईस्ट पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसके अलावा जो बच गए हैं नॉर्थ ईस्ट में उसको पूर्वांचल हिमालयाज़। अब हम बात करेंगे नदर्न प्लेन्स की। तो ये जो नदर्न प्लेन्स है, या आप मैप में देख सकते हैं कि जो मेजर जो 3 रिवर्स हैं उनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्होंने जो सेडिमेंट्स ला के डिपॉजिट किए उससे ये फॉर्म हुआ है। इसमें देखिए आप, गंगा रिवर है, इंडस रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर, और उनकी बहुत सारी सहायक नदियों ने जो अपने साथ सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स लेके आए, उन्होंने जो डिपॉजिशन किया उससे फॉर्म हुआ है हमारा नदर्न प्लेन्स, formed by sediments brought by the 3 major rivers, that is Indus, Ganga and Brahmaputra, along with their tributaries. They are fertile plains made from deposition of alluvium. जो alluvium है, alluvial soil है, उसके deposition से ये नदर्न प्लेन्स फॉर्म हुए हैं। इसका टोटल एरिया लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और अगर हम अपने देश के किसी भी और फिजिकल डिवीजन से इसको कंपेयर करें तो ये सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन है। The length is about 2400 kilometers. The width ranges from 320 kilometers to 240 kilometers. तो देखिए लेंथ, एरिया और विड्थ पता लग गई है हमको। नेक्स्ट इज इट इज डेंसली पॉपुलेटेड रीजन बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल अलॉन्ग विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई। बहुत अच्छी फर्टाइल सॉइल यहाँ पर अवेलेबल है, और बहुत सारे रिवर्स जो फ्लो कर रहे हैं उससे एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और बहुत सारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। इट इज़ एग्रीकल्चरली द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा उपजाऊ पार्ट है, यूज़फुल पार्ट है अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें हमारे देश के लिए। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स फॉर्म लार्ज रिवराइन आइलैंड्स, एग्जाम्पल मजुली इन असम। जो जब रिवर्स समुद्र में जाने वाली होती हैं, जब उनका जो फ्लो है वो कम हो जाता है तो वो स्प्रेड हो जाती हैं दूर दूर तक, और तब फिर रिवराइन आइलैंड्स बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं, एक रिवराइन आइलैंड की फ़ोटो दिख रही होगी आपको। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है, यानी कि एक ऐसा रिवर का आइलैंड, रिवर के बीच में एक ऐसा लैंड मास जहाँ पर इंसान रहते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। Majuli is the largest inhabited riverine island in the world. It is found in the Brahmaputra river in Assam. Next is you can see an image of the Mount Everest. The Mount Everest is the highest peak of the Himalayas, having a height of 8,848 meters, and it is situated in Nepal. तो अगर हम इंडिया की बात करें, the highest peak in India is K2, 8,611 meters high, also known as Godwin Austen, and it lies in the Pakistani occupied Kashmir. जो पाकिस्तान ने इलीगली हमारी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रखी है, वहाँ पे पड़ता है K2. So I hope you understood today's topics well. Let's move on to the assignment part. Here we have question number first. Explain the division of Himalayas from north to south. Question number 2. Name the division of Himalayas from west to east. Question number 3. Name all major physical divisions of India. Question number 4. Find out and make a list of important mountain passes of the Himalayas. तो ये हमने पढ़ा नहीं है, ये आपका होमवर्क है, ये आप सर्च करेंगे खुद से, उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अगले पार्ट में। जितने भी माउंटेन पासेस हैं मेजर, उनको लिख कर लाएँ अलॉन्ग विद देयर स्टेट्स, कौन से माउंटेन पासेस हैं और कौन से स्टेट्स में हैं। उसके बाद हम मैप वर्क पे उसको प्लॉट करेंगे। So I hope you understood all topics well. If the video was informative, please like it. If you
think that it can benefit your friends, please share it with your friends. Also give your valuable suggestions through comments so that we can make further improvements in the coming videos. And do not forget to subscribe to my channel for latest updates and more informative videos. Thank you and have a nice day.